Hello dear students, today we are going to start our next chapter, that is the chapter number 15th, waves. Chapter number 15, waves. So here topic, that is a 15.1, that what is a wave? You can say what is a wave, and you can say how it produce. Okay, so what is a wave and how it is a produce? So friends, suppose एक easy example consider करते हैं कि ये एक पानी है. Okay, you can say शांत पानी है, like this. Okay, so here we consider it is still water और steady water, right? अब यहाँ पर ये स्टिल वाटर या स्टेडी वाटर जो है हमारे पास, वहाँ पर हम कोई एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. मतलब सपोज यहाँ पर हम कोई एक पत्थर फेंक रहे हैं, राइट? यहाँ पर हमने कोई एक पत्थर को फेंका, राइट? सो हियर यू कैन से, वी कैन से वी थ्रो स्टोन, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? एज वी थ्रो द स्टोन, तो इस तरह से वेव्स जनरेट होंगे, लाइक दिस. बाय दिस वे द वेव इज प्रोड्यूस ऑन थ्रोइंग स्टोन. ओके फ्रेंड्स, एज यू थ्रो स्टोन, दैट मीन्स व्हेन डिस्टर्बेंस is applied, right? And here we consider the particle of medium, जो हमारे यहाँ पर particle है, they are considered as an elastic medium, right? मतलब वो oscillation करके वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे. Okay, that means you can say particle of medium. Okay, so which medium? So particle of, you can say the particle of elastic medium, right? elastic medium मतलब वो क्या करेंगे? oscillation करके वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, right? then they create, they produce a wave. okay, so exactly what is the definition of the wave? So we can say that the propagation of disturbance, what you can say, propagation of disturbance, or you can say energy in a medium or in a space, or in a space is called waves, is called waves, right? that means suppose यहाँ पर कोई एक particle हम कंसीडर करते हैं. ओके, दैट इज फॉर डिस्टर्बेंस. इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर एक पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करें. हमें क्या करना है? कोई भी एक पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करना है. ओके, देन व्हाट हैपन कि सपोज हमने ये पार्टिकल को फोर्स अप्लाई किया, तो ये पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा और इट पास द एनर्जी टू दिस नेबर. तो ये भी क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा, मतलब अपनी पास पर ऊपर से नीचे जाके वापस अपनी पोजीशन पर आएगा. सेम वे द एनर्जी इज propagate. by this way what happen? you can say the energy is propagate. इस तरह से जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी? propagate होगी. by this way the energy propagate in a medium. फिर से एक बार हमने यहाँ पर oscillation मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो ये पार्टिकल अपने पाथ पर ऑसिलेशन करेगा एंड साइमल्टेनियसली इट पास एनर्जी टू नेबर. सो नेबर ने भी एब्जॉर्ब किया, इट कम्स इन अ ऑसिलेशन एंड पास एनर्जी टू नेबर, पास एनर्जी टू नेबर, पास एनर्जी टू नेबर. ओके, वंस अगेन ये मीडियम कौन सा है?
तो ये मीडियम है, इलास्टिक मीडियम मतलब ये एक ऑसिलेशन करके वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे, राइट। सो बाय दिस वे द वेव इज प्रोड्यूस, बराबर। इस तरह से जो वेव्स है वो प्रोड्यूस होंगे। ओके, नाउ कि देर आर मैनी टाइप्स ऑफ waves, okay, okay, for example mechanical waves. So what is the meaning of mechanical wave? Okay, so what is the meaning of mechanical wave? कि a waves which required medium, they are known as mechanical waves. Okay, so we can say that here, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं नेक्स्ट पेज, that is you can say the type of waves. You can say 15.2 types of waves. Okay, so जिसमें पहला है mechanical waves. So what is the meaning of mechanical waves? So waves, for that, or you can say for propagation of wave, for propagation of wave, if medium is required, then such waves are known as mechanical waves. क्या कहेंगे हम उसको कहेंगे mechanical waves. For example, you can say it is water waves, then you can say it is a sound wave, you can say wave on string, you can say seismic wave. What is the meaning of seismic wave? कि during earthquake, the wave produced, they are known as seismic wave. Okay, so these are known as mechanical waves. Okay, so once again, what is a mechanical wave? So here for propagation of wave, the medium is required, or you can say the medium is necessary, then such waves are known as mechanical wave. Second point, that is non mechanical waves. So here you can say that for propagation of wave, medium is not required, medium not required, such waves are known as non-mechanical waves. Okay, that is, for example, you can say light waves. What? Light waves, यहाँ पर medium required नहीं है. Then X-ray, you can say the radio waves, and you can say electromagnetic wave, waves. Okay, so for this type of medium, for this type of waves, medium is not required, right? Then such waves are known as non-mechanical wave. What such waves are known as non-mechanical waves. आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स में ही कि मैकेनिकल वेव्स में ही आगे क्या क्या है. सो एक है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. क्या है? ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से स्ट्रिंग है.
ओके, और वी कैन से कि यहाँ पर एक हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, ओके, और ये रिजिड सपोर्ट से हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को टाई किया है, राइट। नाउ व्हाट हैपन कि हियर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस, here you can say we apply disturbance, ओके। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने डिस्टर्बेंस किया, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, राइट, देन द पार्टिकल ऑफ मीडियम कम्स इन अ ऑसिलेशन लाइक दिस, इस तरह से ऑसिलेशन करेंगे। दैट मीन्स दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ओके। व्हाट यू कैन से, दे ऑसिलेट perpendicular, what here you can say the particle of medium oscillate perpendicular to direction of waves. Such waves are known as transverse wave. क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड वन दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होगा कि दे ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। व्हाट हियर क्या होगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में, what happen in longitudinal wave में, the particle of medium, what you can say, particles of medium oscillate in the direction of propagation of waves, okay. Such waves are known as what you can say longitudinal waves। क्या कहेंगे हम, longitudinal waves। कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप कंसिडर करो कि हमारा जो साउंड वेव है वो ट्रांसवर्स है। साउंड वेव क्या है, ट्रांसवर्स है, मतलब वो इस तरह से होगा ऑसिलेट, राइट। तो हमारी जो आवाज़ है वो धीरे 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 इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, इस तरह से होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो हमारा जो साउंड वेव है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से साउंड वेव, ओके, कि सपोज ये डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ये डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, राइट। तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऑसिलेशन करेगा लाइक दिस, ओके, इस तरह से ऑसिलेशन होगा, ओके, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हम कहेंगे साउंड वेव, ओके। दैट मीन्स सब पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करते रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे साउंड वेव। तो साउंड वेव में एग्जैक्टली क्या होता है कि साउंड वेव में कोई एक जगह आती है जहाँ पर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो एकदम नज़दीक आ जाता है, राइट। और कोई जगह पर ये डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर से दूसरा रीजन आया कि जहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ओके। फिर आगे डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि ये डायरेक्शन में पर्टिकुलर ऑसिलेशन होता रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, और ये पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहेंगे रेरफैक्शन। सो कंडेंसेशन, रेरफैक्शन, कंडेंसेशन, रेरफैक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा क्रेस्ट, ये होगा ट्रफ, यू कैन से इट इज़ अ क्रेस्ट, यू कैन से इट इज़ अ ट्रफ, ओके। सो बाय दिस वे it is one of the very important, that is the transverse wave and longitudinal wave। once again transverse wave में जो डायरेक्शन होगी
किसकी डायरेक्शन, ऑसिलेशन की, वो कहाँ पर होगी, इट इज़ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एंड इन अ केस ऑफ longitudinal wave it is in the direction of propagation of wave. So it is a transverse wave and longitudinal wave. नेक्स्ट वन दैट इज, इसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम वाटर वेव्स को कंसिडर करते हैं. ओके, सो वाटर वेव्स में हमारे पास दो तरह के वेव्स मिलेंगे. फर्स्ट वन दैट इज द कैपिलरी वेव्स, and second one that is gravity waves. Okay, so what is the meaning of capillary waves? So capillary waves, that means for ripple of short wavelength, for ripple of short wavelength, the restoring force is produced, the restoring force is produced in the surface tension of water, in the surface tension of water. Such waves are called capillary waves. Such waves are called capillary waves, right? So water waves में कि फॉर रिपल ऑफ शॉर्ट वेव्स लेंथ, कि यहाँ पर उसकी वेव लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है. द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर. ओके, मतलब सरफेस टेंशन में देखा था, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. सच वेव्स आर कॉल्ड कैपिलरी वेव्स. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड वन, दैट इज द ग्रेविटी वेव्स. फॉर रिपल ऑफ लार्ज वेव लेंथ, यहाँ पर शॉर्ट वेव लेंथ है, यहाँ पर large wavelength, you can say that for ripple of large wavelength, the restoring force is provided by gravity. The restoring force provided by gravity. Such waves are called gravity waves. Such waves are called ग्रेविटी वेव्स. ओके, तो ग्रेविटी वेव्स में क्या होगा कि जहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होगी. दैट मीन्स इट इज़ अ सेवरल मीटर्स टू द 100 मीटर्स. ओके, एंड हियर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी. रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, राइट? देन सच वेव्स आर नॉन एज ग्रेविटी वेव्स. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स तो होना ही चाहिए, राइट? तभी तो वेव प्रोड्यूस होगा. ओके, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट इज अ ग्रेविटी. ओके, इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी. और यहाँ पर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सरफेस टेंशन, राइट? then such waves are known as, first one में देखेंगे हम capillary waves and second one that is the gravity waves. Okay, so it is a type of wave. It is important topic.